خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ شارع فیصل، منگھوپی روڈ، سائٹ ایریا، میٹرو ویل، ناظم آباد میں باران رحمت۔ لانڈھی، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سورجانی، چورنگی پر بھی بارش۔ کالا پل، پی آئی بی کالونی، حسن سکوائر، بلوچ کالونی میں بھی بارش۔ کورنگی، مہران ٹاؤن، قیوم آباد، ڈیفنس، محمود آباد میں بھی بارش۔ صدر، سخی حسن، حیدری، عبداللہ ہارون روڈ، ریگل چوک میں بھی بارش ہوئی۔ اسکیم 33، گلشن معمار، فیڈرل بی ایریا میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ شہر قائد میں کالی گھٹاؤں کا راج ہے۔ ابر رحمت برسا تو موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں صبح سویرے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ گلشن حدید، گلشن معمار، سورجانی ٹاؤن، کورنگی، جناح ٹرمینل، شارع فیصل اور اطراف میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ کراچی میں سرمئی بادلوں کا بسیرا، صبح سے جاری رم جھم نے موسم سہانا کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے، M9 موٹر وے، گلشن حدید، گلشن معمار، ملید، گلستان جوہر، کورنگی، مہران ٹاؤن، قیوم آباد، ڈیفنس، جناح روڈ، کیماڑی، شارع فیصل اور اطراف میں بارش ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے 10 ستمبر تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی نوید سنا دی۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کا کہنا ہے کہ ڈیپ ڈپریشن کے باعث شہر میں تیز بارش متوقع ہے، جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ جی دیکھیں، جو موجودہ ڈیپ ڈپریشن کا سلسلہ اس وقت سندھ کے ضلع تھرپارکر میں اس کا مرکز موجود ہے اور یہ ابھی بھی ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں موجود ہے اور آنے والے 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران تھوڑا سا کمزور ہو کر یہ ڈپریشن کی شکل اختیار کرے گا اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ تقریباً شمال مغرب کی جانب، یعنی کہ ہمارے سندھ کے جو وسطی اضلاع ہیں ان کی جانب ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کا اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اب تک سب سے زیادہ بارش 8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا۔ رمشا اسماعیل، ٹی 21۔ کراچی میں طوفانی بارش، ہنگامی اجلاس، چیف سیکرٹری متحرک، آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس، مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران کی شرکت، کراچی پولیس چیف، ڈی آئی جی ٹریفک، ریسکیو حکام کی شرکت، چیف سیکرٹری کی بارش کے دوران شہریوں کو ٹریفک کی بروقت معلومات دینے کی ہدایت۔ سڑکوں کی بندش کا فیصلہ میئر کراچی کی منظوری سے کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم اے کو ضروری مشینری کے ساتھ فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت بارشوں کے پیش نظر ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں میئر کراچی مرتضی وہاب، سیکرٹری بلدیات سید وسیم شمشاد، قائم مقام سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر معز الدین پیرزادہ، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، ڈی جی پی ڈی ایم اے سید سلمان شاہ، ریسکیو 1122، بورڈ واٹر کے الیکٹرک اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری نے بارشوں کے دوران شہریوں کو ٹریفک کی بروقت معلومات دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ بارش میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ اس بار ڈی آئی جی سمیت پولیس افسران، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ریسکیو ٹیمیں فیلڈ میں موجود رہیں۔ ضلع وسطی میں 3 دن کے لیے رین ایمرجنسی نافذ، ڈیوٹی پر مامور متعلقہ ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک، تمام محکمے رین ایمرجنسی میں مکمل فعال رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر طه سلیم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ میونسپل کمشنرز، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، سندھ ریسکیو حکام نے شرکت کی۔ واٹر کارپوریشن میں رین ایمرجنسی نافذ، 26 ٹاؤن میں سیکشن اور جیٹنگ مشینیں مختلف مقامات پر پہنچا دی گئیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشینیں اسٹینڈ بائی بھی رکھی گئی ہیں۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے عوامی سہولت کے لیے سرگرم ہیں۔ بارش میں اہم شاہراہوں پر ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا مختلف علاقوں کا دورہ، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے خود ٹریفک کلیئر کروائی۔ ایس ایس پی ٹریفک اور ڈی ایس پی بھی متحرک ہیں۔ تمام ٹریفک سیکشنز کو ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ شہر قائد میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہو سکے، کورنگی انڈسٹریل ایریا کا الہی روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ گہرے گڑھے پڑنے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ کراچی میں گندگی اور سیوریج کے بڑھتے مسائل، کورنگی انڈسٹریل ایریا کا الہی روڈ تباہ حالی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس سڑک پر نہ صرف فیکٹریاں موجود ہیں بلکہ درجنوں رہائشی مکانات بھی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ سڑک اب سڑک کم
गंदे पानी का तालाब ज्यादा लगती है। ड्राइवरों का कहना है कि पानी इतना जमा है कि गड्ढे नजर ही नहीं आते। रोज गाड़ियां फंसती हैं। कई हफ्तों से यही हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। ये सड़क सिर्फ तबाह नहीं बल्कि खतरनाक हो चुकी है। रात के वक्त तो बिल्कुल अंधेरा होता है। हादसात मामूल बन चुके हैं। 2 हफ्ते हो गए ऐसे पानी खड़ा हुआ है, कोई इधर मालकी नहीं है, कोई चीज नहीं है। इधर सारे मुश्किलात में होते हैं पानी की वजह से। गाड़ी तो सारा बहुत है और गाड़ी भी फंसती है। हम तो के देख ले सारा कड़े कड़े और पानी कड़ा हुआ है सारा। कोरंगी का ये इलाका मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। रोजाना लाखों रुपए की मालबर्दारी इसी रास्ते से होती है, लेकिन सड़क की हालत देखकर लगता है जैसे मुतल्लिका हुकाम की अदम तवज्जो की अक्कासी करती है। कैमरामैन सजाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में बारिशों और उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकार मुतहरिक हैं। मुमकिन बारिश में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट। मॉनसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी इंतजामिया के साथ मुतहर्रिक। अहलकार फराइज की अंजाम दही में मसरूफ नजर आए। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश से अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। डिफेंस मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। उनका कहना था कि कोशिश है शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर सूरत हाल बेहतर बनाने और नकासी आप तक तमाम अजला के पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए। अफसरान बाला का अहकाम यही है कि हम और ट्रैफिक पुलिस मिलके रोड पे आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। अगर खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग होती है या कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हम तैयार हैं। जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है वो सब हमारे मोबाइल में मौजूद हैं और हमारी नफरी ट्रैफिक पुलिस के साथ हर वक्त रोड पे रहेगी ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। पुलिस हुक्काम के मुताबिक टैंक चौक, स्टील टाउन मोड़ समेत मलीर के इलाके बारिश के हवाले से हसास करार दिए गए हैं, इसलिए इन मकामात को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जहां बारिश के बाद सड़कें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, वहां पुलिस मुकम्मल तौर पर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करती है, लोगों को पानी से निकालती है, निकाल के उनकी मदद करती है, हर किस्म की मदद करती है और हाजिर रहती है। 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। जो भी मुश्किलात होगी हमारे साथ ट्विचिंग होती है, गाड़ियाँ कहीं ख़राब हो जाती है तो हम उसको साइड करवाते हैं ट्विचिंग करवा के। और उसके अलावा अगर कोई खड्डे शड्डे पानी बह जाता है, खड़ा हो जाता है तो उसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, फिलिंग करवाते हैं। मुमकिन तेज बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस अफसरान और एहलकार मजीद मुस्तैद होकर ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। मेयर कराची का बारिशों के तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने क्लिफ्टन नहर ख़याम के आउटफॉल का मुआयना किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि समंदर की भरपूर लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। तारिक रोड अंडरपास क्लियर है, आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुला है, सड़कों पर अमला और मशीनरी मौजूद है। सबमरीन अंडरपास भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला है। बारिश की सूरत में अमला सूरत हाल संभालने के लिए तैयार है। मेयर कराची का बारिशों के तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने क्लिफ्टन नहर ख़याम के आउटफॉल का मुआयना किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि समंदर की भरपूर लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। तारिक रोड अंडरपास क्लियर है, आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुला है, सड़कों पर अमला और मशीनरी मौजूद है। सबमरीन अंडरपास भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला है। बारिश की सूरत में अमला सूरत हाल संभालने के लिए तैयार है। मेयर कराची का बारिशों के तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने क्लिफ्टन नहर ख़याम के आउटफॉल का मुआयना भी किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि समंदर की भरपूर लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। तारिक रोड अंडरपास क्लियर है, आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुला है। बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल की। पंजाब से आने वाला सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो चुका है। कल शाम तक गुड्डू बैराज के मकाम पर 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। सीनियर वजीर शर्जील एना मेमन कहते हैं रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासा इलाकों में सरगर्म है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला गुड्डू बैराज में दाखिल। 2 रोज में गुड्डू बैराज के मकाम पर 50,000 क्यूसेक से जायद पानी दाखिल हुआ है। पंजनद से 5 लाख क्यूसेक पानी गुड्डू पहुंचने का इम्कान है। सीनियर वजीर शर्जील एना मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 24 घंटों के दौरान मजीद 5,830 लोगों को बाहर निकाला गया है। सिंध फ्लड कंट्रोल रूम में DG PDA में सलमान शाह ने बताया कि कोहे सलेमान में
बारिशें होने की सूरत में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। देखिए जी, सैलाब का बारिशों पे इम्पैक्ट, सैलाब के पानी में जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो होता है जो ये कोई सुलेमान रेंज में जो बारिशें होती है जो पंजनद के बाद एड ऑन होती हैं हिल टॉरेंट्स, तो उनमें अगर इजाफा हुआ तो ये पानी की क्वांटिटी बढ़ भी सकती है। अभी जो सूरत हाल है, अभी हम जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो कोई सुलेमान रेंज में इतनी कोई हैवी रेंज नहीं है, लेकिन इस फैक्टर को भी मद्देनज़र रखते हुए कि अगर खुदा न खास्ता कोई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बड़े एब्रप्ट फिनोमेनास डेवलप हो जाते हैं वेदर में और आप फेस करते हैं। सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर अमन चन्ना का कहना था कि कच्चे के इलाकों से 1.5 लाख लोगों का इनखला किया जा चुका है, मजीद 1.5 लाख लोगों को निकाला जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले में मजीद 3 लाख अफराद का इनखला किया जाएगा। जो लोग कच्चे में रहते हैं, जो पानी को हर साल देखते हैं, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि किस वक्त हमें कहाँ से निकलना है, और हमारी अपना ख्याल ये है कि जैसे आज की फिगर अगर आप देखें तो हम 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो निकल चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। आप अगर हमारी जो लेवल 1 वाला जो फ्लड था जिसके अगर पॉपुलेशन देखें तो वो 3.25 लाख के करीब, तो उसमें से आधे लोग तो निकल चुके हैं। सिंध हुकूमत कल बहुत बड़े सैलाबी रेले की सिंध में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। इम्कान है कि गुड्डू बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी का अखराज होगा। कैमरामैन आगा रफीक अहमद के साथ आजिज जमाली, कराची। लांडी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के मातहत अस्पतालों में मरीज रुल गए। ज़राए के मुताबिक सैसी के लांडी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है, जिसके बायस मरीज अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। गैस बहरान और बिजली के एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी, सुल्तानाबाद, कोरंगी और औरंगी समेत कई इलाके मुतासर हैं। शहरी कहते हैं कि गैस की शदीद किल्लत से घरेलू उमूर मुतासर और खाना पकाना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में आमदन का बड़ा हिस्सा LPG पर खर्च करना पड़ रहा है, जबकि बिजली की बंदिश भी मामूलात मफलूज कर देती है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कम वसूली और बिजली चोरी वाले फीडर्स पर 4 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि बारिश के दौरान शहरी खंभों और बरकी आलात से दूर रहें ताकि हादसात से महफूज रह सकें। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना एक ही दिन में $61 महंगा होने पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 6100 रुपये इजाफे के बाद पहली बार 3,84,000 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सोना अवाम की पहुंच से मजीद दूर फी तोला चौथी सेंचुरी को छूने लगा। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों की नई बुलंद तरीन सतह कायम। सोने के ताजिर चकरा गए, कारोबार ठप, शहरियों के लिए सोना ख्वाब बन गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $61 महंगा होकर $3,613 फी ओंस की बुलंद सतह पर पहुँच गया। इस इजाफे का असर मकामी सराफा मार्केट में भी हुआ। 1 तोला सोना 6,100 रुपए महंगा होकर कीमत 3,84,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल्ला चांद का कहना है कि आलमी मार्केट में तेजी बड़े बैंकों की सोने की खरीदारी वजह बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 5,230 रुपए महंगा होकर 3,29,219 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। और 1 तोला चांदी की कीमत में 23 रुपए इजाफे से 4,338 रुपए की नई बुलंद सतह कायम हो गई। अशरफ खान, सिटी 21।